Hello students, how are you? Today I am going to discuss another question session of exponent of real number. हर किसी को As तो ये आपका कुछ क्वेश्चन का डिमांड था कि सर ये क्वेश्चन इसमें जैसे 2-4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा अलग तरीके के हैं, तो उसको मैं ये करके और फिर आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा आज। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। बहुत ये क्वेश्चन था, पिछले क्लास में हमने किसी स्टूडेंट को बुलाया था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कोई स्टूडेंट आके इसको सॉल्व कर सकता है? अगर कर सकता है, दिस इज़ वेरी इजी, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ। अगर कोई कर सकता है तो इजीली करो, ओके? इजीली करो, कम यू कैन होल्ड दिस हैंड इसको लगा लो, उस हैंड में होल्ड कर लेना, तो इसको लगा लो, बस हो जाएगा। होल्ड करना, बोलते जाओ। यू कैन स्पीक ऑल्सो। Yes, sir. Three raised to power c by 3 raised to power a all whole raised to power c plus a. Three raised to power a minus b into a plus b into 3 raised to power b minus c into b plus c into 3 raised to power c minus a into c plus a. As we know that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So 3 raised to power a square minus b square into 3 raised to power b square minus c square into 3 raised to power c square minus a square. As we know that when base is same we can add the exponents. A square minus a square, then cancel, we can cancel it, and minus b square plus b square, it is also cancel, minus c square plus c square cancel. So the exponent of 3 is 0. As we know that when the exponent is 0, then the value of that number is 1. So RHS is equal to 1. Then proved. Can you explain it? Yes. इधर 3 raised to power a by 3 raised to power b whole raised to power a plus b into 3 raised to power b by 3 raised to power c whole raised to power b plus c into 3 raised to power c by 3 raised to power a whole raised to power c plus a, that is LHS. That is LHS. We can also write it in the form of 3 raised to power a minus b into a plus b
into 3 raised to power b minus c into b plus c into 3 raised to power c minus a into c plus a. As we know that a square minus b square is equal to a minus indicate that line. Okay. as we know that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So by putting this formula on this equation, we can write it in the form of like in this form: 3 raised to power a square minus b square into 3 raised to power b square minus c square into 3 raised to power c square minus a square. As we know that the base is same, then the power will be, we can add the power. Then we can write like this: 3 raised to power a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. We can cancel it, a square to a square with minus a square, minus b square plus b square, and minus c square plus c square. Then the power will be, then the base will be, then the base will be 3 and the power will be 0. Then it is equal to 1. So LHS is equal to RHS is equal to 1. So hence proved. Very good. Now the students, you can see that इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया, आप लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन ऐसा रखता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट इसको कर सकता है, ठीक है, तो करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको आप लोग कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका थोड़ा सा 28 अगस्त 1896 नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, इफ 2 रे टू द पावर x इक्वल टू 3 रे टू द पावर y इक्वल टू 6 रे टू द पावर माइनस z, सो दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो अभी सॉल्व करते आ रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट, इसको मैं सॉल्व सोशल राइटर ऑल्सो 2 रे टू द पावर x इक्वल टू 3 रे टू द पावर y इक्वल टू 6 रे टू द पावर z। देन we will let टू रे टू द पावर x इक्वल टू 3 रे टू द पावर y इक्वल टू 6 रे टू द पावर z इक्वल टू, इसको k से डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज सभी क्या है, आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हो, मैंने k लिया है, ये सभी इक्वल है तो किसी एक से हम इस सभी को इक्वल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 2x 3y और 6 रे टू द पावर z ये अगर आपस में इक्वल हैं तो किसी एक से भी इक्वल हो सकते हैं सभी, तो हमने k से यहाँ डिनोट किया है। तो वी कैन राइट दैट 2, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लो, जब आगे बढ़ते हैं देखो, यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर दिया रहता और यहाँ k दिया रहता तो इसको आप क्या लिखते, 2 स्क्वायर दिया रहता है, यहाँ k दिया रहता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट k, क्लियर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k रे टू द पावर 1/2, ये भी क्लियर है। तो इससे हमने इस तरीके से इसे चेंज कर लिया, ये सबका क्लियर है कि कभी भी किसी का स्क्वायर अगर दूसरे तरफ जाता है, इक्वल के दूसरे तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और स्क्वायर रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्लियर है सबका, तब ये समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना बाबू,
यहाँ पे 2x इक्वल टू k, वी कैन ऑल्सो राइट, एंड Applying. इक्वल टू स्क्वायर रूट के, और इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर x है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग 2 इक्वल टू k raised to the power 1/x भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है? मैं इससे इसको डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक स्टेप बता दिया कि ऐसे लिखा जाता है ना। यहाँ पे 2 स्क्वायर को हम करते हैं तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ 2 है तो ये क्या होता है, ये हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के जगह पे यहाँ पे 2 हिडन रहता है, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम 2 ला देते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ अगर कोई दूसरा है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, उसके जगह पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 हो 4 हो चाहे कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे x है तो उसको हमने रिप्लेस किया, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। एंड सेकेंड वन क्या है, 3y, 3 raised to the power y, सॉरी, देन वी कैन राइट। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 raised to the power माइनस z इक्वल टू k raised to the power -1/z लिखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं क्या, तो फिर से मैं समझा दूंगा, बोलो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है। वी विल एक्सप्लेन यू अगेन, कोई डाउट नहीं है, बोलो ये कैसे एक डरा कर सिखाया जाता अभी आप लोग लिख सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ पे, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें तो हमें ये लाना है ना, और यहाँ पे सबका क्या है, रेज टू दी पावर सब में हो रहा है। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो सकता है, ये इक्वेशन 2 हो सकता है, ये इक्वेशन 3 हो सकता है, यही दिख रहा है ना। अब इससे हम कैसे डिराइव करेंगे ये चीज़, ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक चीज़ आइडिया लग रहा है कि 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो सकता है क्या, तो ये आइडिया यहाँ पे, तो इस तरीके से वी नो दैट 2 × 3 = 6, इस तरीके से होगा। तो 2 के जगह पे क्या है, आप देखो यहाँ पे, देन 2 के जगह पे हमारा क्या है, k को रिप्लेस करेंगे 2 के जगह पे, तो क्या होगा, k raised to the power 1/x। क्लियर है? और इनटू का साइन यहाँ रहेगा, ये इनटू का साइन है, तो इसको फिर क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, k raised to the power 1/y, ये भी क्लियर है। अब देखो 6 को रिप्लेस करेंगे तो क्या है, k raised to the power -1/z, ये भी क्लियर है। अब देखो कैसे हम लोगों का जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे उसी फॉर्म में आ गया। अब देखो ये बेस सेम है, तो k हो जाएगा, बेस हो गया 1x, और ये आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और इधर क्या है, k -1/z, ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, ये कैसे हुआ है, रिप्लेस किया गया है। अब इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो ना, इसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जब कैंसिल करोगे तो आप क्या आपको मिलेगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, यही मिलेगा ना। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो हमारा यहाँ पे 0 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक 0 हमें फाइंड हो जाएगा। प्रूव्ड। यहाँ हमने LHS RHS कुछ भी नहीं लिया था, यहाँ हमें ये टर्म प्रूव करना था। हमने ये टर्म दिया हुआ था, ये टर्म हमें 2 टर्म एक ही साथ, LHS RHS यहाँ तो हमने कोई मेंशन नहीं किया, तो यानी कि कोई भी कुछ दिया रहे उससे हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ किसका यूज किया गया, देखो यहाँ पे 2 और 3 का यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले गिवन है 2 raised to the power x इक्वल टू 3 raised to the power y इक्वल टू 6 raised to the power -x। अब इसे हम कैसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास या तो जो बेस है वो सेम न्यूमरल में है, और वो क्या है, वो वेरिएबल में है।
वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे, न्यूमरल वाले को। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 3 और 2 6 होता है, तो इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे। तो इसी मेथड को हमने सबसे पहले इसको 2 और 3 को क्या किए हैं, बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे क्लियर किया है कि एक ही तरह के वहाँ पे क्या हैं, बेस आए। तो ये एक ही तरह के बेस यहाँ पे सभी में हमने के से ये किया है, तो सभी का बेस सिमिलर आया ना। अब इसको उसी से हमने क्या किया है, उसी को पुट किया है। वी नो दैट 2 × 3 = 6, ये तो सब कोई जानता है। अब उसी को तो 2 के जगह पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि 1 × 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके = 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि सभी जानते हैं कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है। तो अब 2 क्या है भाई, तो 2 है k⁻1/x, वहाँ पुट कर दिया। 3 क्या है, तो k⁻1/y, और 6 क्या है, k⁻−1/z। अब देखो ये जब इस फॉर्म में रहते हैं तो इसको हम अरेंज करते हैं ना, अरेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉमन बेस हो जाता है और वो ऐड हो जाता है। अब ये कैंसिल हुआ तो इसी प्रकार से ये अरेंज हो गया। तो हमें इसे देख करके इस चीज़ को डिसाइड करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है। यहाँ पे आपको x के फॉर्म में लाना है, तो 2 वाले को हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, x वाले को ऑपरेट करेंगे ना। तो x वाले को ऑपरेट किया गया है तो वो यहाँ पे आपको डिराइव हो गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह का है क्वेश्चन। ये LHS यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमें अनदर वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं AX = B⁻y = C⁻z। दिस इज z गिवन है, देख लो, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये आपको गिवन है, तो पीछे हम लोगों ने जैसे उसको अप्लाई किया था सेम उसी तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेट A⁻x = B⁻y = C⁻z = k। इसको k से डिनोट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये उसी फॉर्म में है, y और z को इसको रीअरेंज, तो हमें ये नहीं देखना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो ये क्या किया जाएगा, इसे हम लोग A⁻x = k है, तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k⁻1/x। इसमें किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंड वन आपका क्या है, B⁻y = k, तो इसे हम लिख सकते हैं b = k⁻1/y। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। C⁻z = k है, तो c = k⁻1/z। ये क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमें हेल्प दे दिया गया है, देखो यहाँ पे उसमें कुछ नहीं हेल्प दिया गया था। यहाँ पे कि b² = ac है, तो b² हमारा यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। वहाँ तो भी तो हम लोग वही किए थे, वहाँ कुछ दिया नहीं गया था, लेकिन हमें पता था कि 2 और 3 6 होता है। तो यहाँ तो आपको वेरिएबल में है, तो इसलिए ये गिवन है। यहाँ पे b² = ac दिया हुआ है, तो वही सेम मेथड है, लेकिन ये वेरिएबल में है, इसलिए आपको क्या करना है, b² गिवन दैट, यहाँ पे लिख देना गिवन दैट b² = ac, तो इसी पे पुट करेंगे b² यानी, तो b के जगह पे हम क्या करेंगे, k, यहाँ पे ध्यान दो, b × b आप कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, b × b। क्लियर है, b × b इसको कर सकते हो इक्वल टू a × c, ये भी कर सकते हो। b को 2 बार यहाँ पे लिखोगे आप, तो क्या होगा, 1⁻y × 1⁻y। ध्यान देना है, वहाँ स्क्वायर कर देते हैं आप लोग, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, ये की जगह पर क्या है, k⁻1/x, एंड ये क्या है, k⁻1/z, ये है ना। अब यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, पहले पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y और 1/y को ऐड करोगे तो क्या होगा, y आपका क्या होगा, LCM हो जाएगा,
और इधर का 1 + 1 हो जाएगा ना। तो क्या आप डिराइव करोगे 2/y, क्लियर है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो k 1/y + 1/y इक्वल टू k raised to the power 1/x + 1/z। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या मिलेगा हमें 2/y इक्वल टू, इसमें क्या मिलेगा x z LCM हो जाएगा, और ये क्या होगा z + x, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो y इंटू जेड + x। अब आपको ये वाला ध्यान रखना है कि कैसे अरेंज करेंगे कि ये आएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसको ध्यान में रख के इसको अरेंज कर देना है, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू ZX। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ZX भी लिख सकते हैं, 2ZX। अब यहाँ पे y इंटू है ये स्टूडेंट्स, इसको इंटू ही रहने देते हैं, नहीं तो x आपको लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा 2ZX अपॉन z + x। प्रूव। कितना इजी है, इजी है ना। तो ये चीज़ जब समझोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा ये कैसे, इसको हम कैसे शुरू करें, यही नहीं पता चलेगा। तो शुरू कैसे करना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें हमें अपने से उसको मैनेज करना था। यहाँ पे एक हमें हिंट्स दिया हुआ है, तो वो नंबर में था तो हम जानते थे कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है, बट यहाँ हमें पता नहीं है कि a b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए ये हिंट्स दिया है, क्लियर है। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो, एनी टाइप्स ऑफ डाउट, कोई डाउट नहीं है। नाउ इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट कर सकता है क्या? ओके, आओ आओ आओ, इसको थोड़ा सा बाबू केयरफुली इसको ये करना और पैनिक नहीं होना है। इसको पकड़ लो दूसरे हैंड में, जिससे नहीं लिखेगी उसमें, और इसको स्टिच कर लो। वेरी गुड, उसको हाथ में पकड़, पैनिक नहीं होना है, लिखो। You can write bold letter, बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है। बोलो बेटा, बोलेंगे तब ना, उसका ठीक से समझा देना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, उसके बाद ये कर लेंगे। थोड़ा इधर जगह है, पूरा इधर लिख लो, इक्वल करके। इधर इधर इस साइड हो जाए, और हैंड से यहाँ जो बोलना है 27x इज इक्वल लाउडली बाबू, जो है कोई दिक्कत 27 पावर का x इज इक्वल टू 9/3 का x। सो हम इसको 3 इज इक्वल टू 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाई 3x। तो 3 raised to power 3x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस x। अगर ये ऊपर जाता तो हम उसको माइनस में लेते, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हम ले लिया। 3x + x ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4, 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड।
तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इजी। तो मैं इजी तो आपको अगर समझ में आता है, कोई चीज़ इजी नहीं होता है। अगर आपको समझ में आता है तो इजी होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो वो आपके लिए हमेशा डिफ़िकल्ट रहेगा। जो चीज़ आपको समझ में आता है, अब जिसको समझ में आता है उसको लग रहा है कितना ही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए तो कठिन है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि सभी क्वेश्चन जिसको समझ में आता है वही इजी तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे इसने क्या किया है 27, ध्यान दो 27 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 9 है 3 है। मैं थोड़ा सा इसको मतलब ये भी तरीका यहाँ यूज हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे आप समझो वैसे इसको करना है, ठीक है। 3x plus x x होगा। नाउ द स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन को देखो कई तरीके से आप लोग कर सकते हो। 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, ये क्या होगा x इक्वल टू 1/2। तो इसने क्या किया, इसने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूज किया, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझोगे तो कई प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई कर सकता है क्या? कम 1 नंबर क्वेश्चन, ओके ये स्टीच मार्कर को थोड़ा दूर से पकड़ना, ठीक है। हो जाएगा इक्वल टू 3 और ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। हैव यू एनी मिस्टेक? आपने कोई मिस्टेक किया, आपको दिख रहा है? अगर आप फाइंड कर सकते हो, दिस इज 3/5, दिस इज 5/3, बोथ आर नॉट सेम। तो इस यहाँ पे माइनस कर दोगे तो हो जाएगा क्या? देखो यहाँ, चलो डोंट वरी, वेल ट्राई। चलो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, ये सेम बेस नहीं है, ये क्या है, यहाँ 3/5 है, 5/3 है। तो जब इसका इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, इसका इन्वर्स करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये होगा ना। तो क्लियर है कि यहाँ पे ये जैसे ही होगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में, और ये भी इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 5/3 है। बस इतना सा आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैं
फटाफट फिर से कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। स्टूडेंट्स लिसन, यहाँ पे 3/5 होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो x माइनस 2x इक्वल टू -3 माइनस x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। तो लिटिल मिस्टेक आपने किया था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।